Bible says, my dear friends, in Psalm 41:12, मेरे प्रिय मित्रों, भजन संहिता 41 वचन 12 में बाइबल जो है कहती है, you have upheld me, Lord, because of my integrity. हे यहोवा, तू मुझे खराई से संभालता है You have set me in your presence forever. और सर्वदा के लिए अपने सन्मुख स्थिर रखता है। My friend, मेरे मित्रों, you may be walking in integrity आप खराई में चल रहे होंगे, in your job, अपनी नौकरी में, the affairs of your government job, अपने सरकारी कामकाज में, the affairs of your home, अपने घर के कामकाजों में, in the things concerning the society. समाज से संबंधित कामों में, But still, there may be arrows against you to defame you and destroy your name. तो भी आपके नाम को खराब करने और आपका अपमान करने के लिए आपके खिलाफ में आरोप लगते होंगे। But God will do justice for you. लेकिन परमेश्वर आपके लिए न्याय करेंगे। God will show that you are a man, a woman of integrity. परमेश्वर ये दिखाएंगे कि आप एक खरे पुरुष हैं, आप एक खरी महिला हैं। And He will keep you in His presence always, comforted, strengthened, and powerful to face such arrows. और आपको अपनी उपस्थिति में वो बहुत ही आराम के साथ सुरक्षित रखेंगे ताकि आप ऐसे तीरों का सामना करने पाएं। And through that, finally, He will give you justice. You will win. और आखिर में उनके द्वारा वो आपको न्याय दिलाएंगे और आप जयवंत In होंगे। your school, अपने स्कूल में, in your working place, अपने काम के स्थान पर, in the government, सरकार में, in society, समाज में, you will be more than a conqueror. आप जयवंत से भी बढ़ करके होंगे। All the injustice that has been done against you will not prosper. आपके खिलाफ किया गया हर एक अन्याय जो हो वो सफल न होगा। No weapon formed against you will prosper. आपके खिलाफ रचा गया कोई भी हथियार सफल न होगा। Here's a beautiful testimony from a dear brother who is 73 years old, Mr. Jayavelu from Chennai. चेन्नई के मिस्टर जयवेलू जो 73 वर्ष के हैं, उनकी खूबसूरत गवाही को सुने। He retired from the electricity board of the government in 2008. 2008 में वो राज्य सरकार के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से रिटायर हुए। In a few days after the retirement, he got a notice from the government saying there is a charge sheet against you and a case has been opened. और रिटायर होने के कुछ दिनों के बाद उन्हें एक सूचना मिली कि उनके खिलाफ एक चार्ज शीट है और उनके विरुद्ध में जो कार्यवाही है शुरू हो गई है। His heart was broken because he was a man of integrity. उनका हृदय विदीर्ण हो गया क्योंकि वे एक खरे पुरुष थे। And he was asked to appear for an inquiry. और उन्हें आदेश दिया गया कि वे इंक्वायरी के लिए प्रस्तुत हों। He cooperated. उन्होंने पूरा सहयोग दिया। 2 years later, another series of inquiry, 2010. और 2010 में 2 वर्ष के बाद फिर से एक बार इंक्वायरी शुरू हुई। 2011, another inquiry. 2011 में एक और इंक्वायरी शुरू हुई। 2015, another inquiry. 2015 में एक इंक्वायरी और शुरू हुई। Never allowed him to be in peace. उन्होंने कभी भी उन्हें शांत नहीं जीने दिया। Harassment after harassment. एक के बाद एक परेशानियां For a man of integrity. एक खरे मनुष्य के लिए। And finally the officials said that his record is clean and there is no act of malice in his case. और आखिर में अधिकारियों ने कहा कि उनका रिकॉर्ड जो है बिल्कुल साफ है और उनके खिलाफ कोई भी केस नहीं बनते हैं। But after 8 years, 2023, dear brother Jayavelu went to see a high official just casually. लेकिन 8 साल के बाद 2013 में भाई जयवेलू जो है यूं ही एक अधिकारी से मिलने के लिए गए। And that officer gave him a shock. और उस अधिकारी ने उन्हें तो चकित कर दिया। He said the man who was inquiring the case, before he left, he did not close the file and he said your file is still open. और उन्होंने कहा कि तुम्हारी जो जांच करने वाला अधिकारी था उसने फाइल बंद नहीं की और फाइल जो है अभी भी खुली हुई है। 15 years unjustly he was being harassed with a wrong accusation. एक गलत आरोप के साथ 15 वर्षों तक उनको बस ऐसे ही तंग कर जाता रहा। At that time he came to Jesus Calls prayer tower and the prayer warriors prayed along with him for justice. और उस समय वो जीसस कॉल्स प्रार्थना भवन में आए और
प्रार्थना योद्धाओं ने उनके लिए न्याय के निमित्त प्रार्थना की। Then he came to a Jesus Calls meeting and met me. और उसके बाद वो यीशु बुलाता है कि एक सभा में आए और वो मुझसे मिले। And I prayed along with him and said, Lord, do justice and let the case be closed. और मैंने प्रार्थना करके कहा, प्रभु न्याय करें और ये जो केस है वो बंद हो जाए। Miraculously, the same year, the case was closed and justice was done. चमत्कारिक रूप से उसी वर्ष में केस जो है बंद कर दिया गया और उनके साथ न्याय And हुआ। they said, we have not found any fault in him. और उन्होंने कहा कि हमने उनमें कोई भी गलती नहीं पाई है। And Mr. Jayavelu says, God has done justice. और जयवेलु कहते हैं कि प्रभु ने मेरा न्याय किया The है। same place where I went through injustice, God gave me justice. से स्थान पर जहां मुझे अन्याय सहना पड़ा, परमेश्वर ने मेरा न्याय किया God है। upheld his name and gave him justice because of his integrity. उनकी खराई के कारण परमेश्वर ने उनके नाम को ऊपर रखा और उन्हें न्याय दिलाया। And made him bear the harassment through his presence, through God's presence. और ईश्वर ने अपनी उपस्थिति के द्वारा से इन सारी परेशानियों को झेलने में मदद God की। will do it for you. परमेश्वर आपके लिए भी यही करेंगे। Father, पिताजी, whoever is going through this harassment because of the wicked people, deliver them from those cases, deliver them from those oppressions. जो भी लोग ऐसे दुष्ट लोगों के कारण से ऐसी परेशानियों से गुजर रहे हैं, आप उन्हें ऐसी स्थिति से छुटकारा Deliver दें। them from the false accusation. हर एक गलत आरोपों से आप उन्हें छुटकारा दें। Deliver them from those wicked people. ऐसे दुष्ट लोगों से आप उन्हें छुटकारा दें। Deliver them from those evil people. ऐसे बुरे लोगों से आप उन्हें छुटकारा दें। Let them be finished like Judas, Lord. और यहूदा के समान वो नाश हो जाएं। But let thy children have a good report, saying, your hands are clean, and let them have justice. लेकिन आपके लोगों को एक अच्छी रिपोर्ट मिले कि इनके हाथ साफ हैं और उनके साथ न्याय होने पाए। Whatever money has to come to them, as justice, let it come. जो भी पैसे उनको मिलना है, न्याय के साथ वो उन्हें मिलने पाए। Promotion, let it come. प्रमोशन उनके पास आए। Higher posts and positions, let it come. ऊंचे पद और पदवियां उनके पास आए। Give them favor in the eyes of all the top officers. हर एक उच्चाधिकारियों की नजर में उन्हें आप अनुग्रह दें। Give them favor in the eyes of the family members. Let the property come to them, Lord. और परिवार के लोगों के बीच में उन्हें अनुग्रह दें, उनके पास संपत्ति आए। Let them get everything back in double measure. वे सब कुछ दूने हिस्से के साथ प्राप्त करें। Thank you for this blessing. इस आशीष के लिए धन्यवाद। Continue to keep them in your presence as your children. अपनी उपस्थिति में अपने बच्चों के रूप में आप उन्हें सतत बनाए रखें Continue to honor their name as people of authority and integrity. और उनके नाम का आदर जो है सतत आप खरे और आदरणीय लोगों के बीच में रखें। Thank you for this blessing. इस आशीष के लिए आपका धन्यवाद। In Jesus' name. यीशु के नाम में Amen. आमीन। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। We are here to pray with you anytime. Call the prayer tower. It's open 24 hours to pray with you. हम आपके लिए प्रार्थना करने के लिए हमेशा खुले हैं। 24 घंटे आप प्रार्थना के लिए प्रार्थना भवन में फोन लगाएं। My precious friend, मेरे बहुमूल्य दोस्तों, we are going to have a prayer get together at Bethesda Prayer Center at Karunya Nagar, which is in Coimbatore. हम एक विशेष प्रार्थना सत्र करने वाले हैं बेथेस्दा प्रेयर सेंटर जो कि कारुण्य नगर कोयम्बतूर में है। Yes, we are going to pray that God will turn your sorrow into joy. हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर आपके दुखों को आनंद में बदल दे। So come with all your family members. और इसलिए अपने पूरे परिवार के सदस्यों के साथ आइए। Let God wipe away their tears and do miracles for them. कि परमेश्वर उनके आंसुओं को पोंछ दे और उनके लिए चमत्कार करे। We lay hands on everyone who comes and pray for them in the name of Jesus. वहाँ पर आने वाले हर एक व्यक्ति के ऊपर हम हाथ रखते हैं और यीशु के नाम में प्रार्थना करते The हैं। hand of Jesus will come upon them. यीशु का हाथ उन पर आए, It will come upon you. वो आप पर आएगा And you will go back with your sorrow turned into joy. और आप वापस जाएंगे और आपके दुख आनंद में बदल जाएंगे। You can come and stay there. आप आकर वहाँ पर रह सकते हैं। Food facilities are available. भोजन की व्यवस्था वहाँ पर उपलब्ध है। Transport facilities are available from the city of Coimbatore. कोयम्बतूर शहर से यातायात के साधन भी उपलब्ध है। Just come. बस आइए। Call the number on the screen and they'll give you all the information. स्क्रीन के नंबर पर फोन कीजिए और वो आपको सारी जानकारी देंगे। डॉक्टर पॉल दिनकरन और इनका परिवार व्यक्तिगत रीति से आपको न्योता देते हैं कि बेथेस्दा ब्लेसिंग मीटिंग कारुण्य नगर कोयम्बतूर में आएं। तारीख है रविवार 7 जुलाई
समय है दोपहर 2 बजे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं 9487846601 पर तुरंत संपर्क कीजिए।